اس کو ریکارڈ کرنا انیتھیکل ہے. حکومت یہ کام کر رہی ہے, حکومت یہ کام کروا رہی ہے. اس کو اس طرح سے لے کر آنا انیتھیکل ہے. حکومت یہ کر رہی ہے, حکومت یہ کروا رہی ہے. اگر ملک کے وزیر اعظم کا دفتر اتنا غیر محفوظ ہے کہ وہاں ہر میٹنگ کی ریکارڈنگ ہو رہی, تو باقی کون محفوظ ہوگا؟ ایجنسیوں کا یہ کردار کس مہذب ملک میں ہے؟ اب کوئی جج, سیاستدان, سرکاری ملازم, حتیٰ کہ گھریلو خواتین بھی اس تھرڈ کلاس سوچ کا شکار ہیں. دیکھیے, کچھ صحافیوں کو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, ایک جگہ بلایا گیا, بلا کر کہا گیا نو الیکشن, ایک بات. دوسرا, عمران خان از ناٹ گوئنگ ٹو کم ان ٹو پاور کم واٹ میں. یہ میں کوٹ اینڈ کوٹ آپ کو ورڈز بتا رہا ہوں, اور یہ حکومت کروا رہی ہے. اب صحافیوں کو ایک عدد اور بریفنگ دی گئی ہے, اس میں 3 ورڈز جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. یہ 3 ورڈز جو ہیں یہ آپ کو گزشتہ کچھ عرصے میں ان صحافیوں کی ٹیلی ویژن گفتگو میں, اور یہ سارے وہ صحافی ہیں جو اسپیشلی ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں, پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں اور یا پھر آ کر اپنی رائے دیتے ہیں, ان صحافیوں کو 3 لفظ دیے گئے ہیں. اور یہ آپ کو مسلسل, آپ سوشل میڈیا ویڈیوز دیکھیں, آپ کو یہ 3 لفظ ملیں گے. ایک کلٹ, دوسرا لفظ ہے پاپولسٹ, اور تیسرا ہے ڈسرپٹیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. آپ نے دیکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی مبینہ طور پر ساس کی لیکڈ کال, یہ اور خواجہ طارق نعیم ایڈوکیٹ, ان کی مبینہ طور پر جو اہلیہ ہیں رافعہ طارق, ایک لیکڈ کال سوشل میڈیا پہ سرفیس ہوئی ہے. وہاں چل رہی ہے کہ چیف جسٹس کی ساس اور ایک وکیل کی جو اہلیہ ہیں ان کے تصویر کے ساتھ پی ٹی آئی کا پرچم لگایا گیا ہے. اور یہ لیکڈ کال جو ہے یہ سامنے آئی ہے. اس لیکڈ کال کے بعد ہمارے ہاں ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو ایک بار پھر عدلیہ پر حملہ کر رہی ہے. یہ کال سامنے آئی, ہمارے دوست ہیں ایئر وائی کے رپورٹر حسن ایوب, انہوں نے یہ کال سوشل میڈیا پر رکھی. اس سے پہلے انڈی بیل, یہ جو ہیکر اکاؤنٹ ہے جو عمران خان کی حکومت کے جانے کے بعد سرفیس ہوا تھا, اور اس کے سرفیس ہونے کے بعد کہا گیا تھا کہ دیکھیے گا حکومت اس کی چیزیں مان لے گی, حکومت اس کی چیزیں مان لے گی, کیونکہ اب یہ ہیکر عمران خان کے قریبی لوگ اور حکومت کو جو ٹکر دے گا اس کی کالز لیک کرے گا یہ ہیکر. تو وہی ہوا ہے. ہیکر کی طرف سے یہ اعلیٰ عدلیہ کو بھیجا گیا خصوصی عید گفٹ ہے. حسن ایوب نے یہ ٹویٹ کیا. اب اس ٹویٹ میں, اس گفتگو میں جو مبینہ طور پر مہنون جبین صاحبہ, چیف جسٹس صاحب کی ساس, اور رافعہ طارق صاحبہ, ان کی مبینہ طور پر گفتگو ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے یہ کہ مہنون جبین صاحبہ جو ہیں وہ کہتی ہیں ہیلو رافعہ, کیا ہوگا یار, میں تو رات سے نہ عمر کے لیے, یعنی وہ خواجہ طارق نعیم کی اہلیہ سے کہتی ہیں کہ میں تو رات سے عمر کے لیے, عمر عطا بندیال کے لیے پڑھ کے میں تمہیں بتا نہیں سکتی, دعائیں مانگ کے صبح سے. پھر اس کے بعد رافعہ کہتی ہیں یار لوگوں کو بھی کہا ہے, اور عمر کو ایک میسج بھیجا میں نے, یعنی عمر عطا بندیال صاحب کو, میں نے کہا تم نے لاہور کے جلسے میں وہاں موجود تھی, وہاں لاکھوں بندہ تھا. لاہور کا جو پی ٹی آئی کا جلسہ تھا وہاں لاکھوں بندہ تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر شہروں میں بھی, ہر شہر میں لاکھوں بندہ ہے, اور تم صرف یہ اندازہ لگا لو کہ تمہیں, یعنی عمر عطا بندیال صاحب کو اس وقت کتنی دنیا دعا کر رہی ہے اس وقت تمہارے لیے, جس سے تمہاری ہمت اور تمہاری سیفٹی, آپ عمر عطا بندیال صاحب کی سیفٹی کی یہ لوگ بات کر رہے ہیں, اور رافعہ صاحبہ کہتی ہیں نہیں اس کی سیفٹی مسٹ ہے. یہ جواباً ان سے کہتی ہیں مہجبین نون صاحبہ جو ہیں وہ کہتی ہیں ان کو کمزور کرے, کہ ان کو ہمت دے. آگے پھر رافعہ طارق صاحبہ کہتی ہیں ان کو تو اللہ دے, جو باقی ہیں ان کو اندھا کرے. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ تو ٹریٹرز ہیں اور غدار ہیں. یہ کہنے کے بعد وہ آگے کہتی ہیں دے آر ٹریٹرز آف دس کنٹری, لک ایٹ دا وے دے آر ڈوئنگ اٹ. اور پھر اس کے بعد جو ہے مہجبین صاحبہ جو ہیں وہ کہتی ہیں وہی نا, بٹ ناؤ دے آر سیئنگ وائی ہی گاٹ دا اتھارٹی ٹو ڈو اٹ, وائی ہی گاٹ دا اتھارٹی ٹو ڈو اٹ. رافعہ طارق صاحبہ کہتی ہیں نو,
महजबीन साहिबा कहती हैं जान के एडवांटेज दे रहे हैं, पुटिंग अदर थिंग्स दैट नाउ देर इज ऑल्सो एंड ऑल्सो क्वेश्चनिंग। महजबीन साहिबा कहती हैं कि सुमोटो क्यों दिया गया है, जो चीफ जस्टिस का इख्तियार है। इस पर राफिया तारिक साहिबा कहती हैं भाई वो तो उसका हक है। महजबीन साहिबा कहती हैं उमर को तो नहीं दिया ना, यानी उमरता बंदियाल साहब के पास तो नहीं, ये तो पहले का हुआ है। इस पर राफिया तारिक कहती हैं नहीं, मगर ये हर चीफ जस्टिस का हक है, सिर्फ बंदियाल साहब का तो नहीं है। इफ यू हैव टू चेंज द लॉ देन चेंज देम एट योर वेला ना, यानी वक्त पे चेंज करें। अब इस वक्त अगर आप कर रहे हैं तो उसकी टाइमिंग पे सवाल उठ रहा है। इसमें जो है नॉट एट दिस टाइम। तो फिर साथ में महजबीन साहिबा कहती है बट दे कांट चेंज इट। राफिया तारिक साहिबा कहती है नो वे, they can change it later but not now, the law is there, यानी कानून तो है। महजबीन साहिबा कहती हैं वही ना, द लॉ इज देयर। राफिया तारिक साहिबा कहते हैं वही तो, वो इतना अच्छा। इसके बाद वो कहती हैं तुम बिल्कुल ना आओ, तुम उमर के साथ रहो, ही नीड्स यू। राफिया तारिक साहिबा फिर वो बताती हैं कि मैंने और लोगों से भी कहा है कि उमरता बंदियाल साहब के साथ रहें। महजबीन साहिबा कहती हैं बिल्कुल। और फिर उसके बाद जो है रात को तो मैंने दोनों को, उसको और मुनीब को, अब ये मुनीब जो है हमारे बाद सहाफ़ी कह रहे हैं कि ये मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की बात हो रही है। और वो कहती है मैंने गुड भेजा तो उसने वो जो इमोजी होता है ना, ज़बान दांतों में दबा लेते हैं ऐसा वाला, वो इमोजी भेजा। बी केयरफुल, वाई शुड आई बी केयरफुल, वाई। अच्छा, फिर उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा है, क्योंकि 2 मिनट 6 सेकंड ये पहला हिस्सा है। दूसरे में बात ये हो रही है कि वो कहती है राफिया तारिक साहिबा इलेक्शन देखो अगर नहीं होती ना, फिर ये समझ लें कि फिर मार्शल लॉ लगेगा। उसके बाद जो है ये कहती हैं कि नहीं रह सकते, बस ख़त्म बात। महजबीन साहब कहती है मार्शल लॉ भी वो कम वक्त लगाने को तैयार नहीं ना। राफिया तारिक साहब कहते हैं बिल्कुल तैयार हैं। अब ये गुफ्तगू हो रही है, इसमें हमारे यहाँ बाज़ लोग बातें कर रहे हैं कि ये चीफ जस्टिस को भेजा गया तोहफा है। एक प्रॉब्लम क्या है इसमें, चीफ जस्टिस की सास साहिबा या राफिया तारिक साहिबा वो किसी एक जमात की तरफ अपनी हिमायत नहीं रख सकती, और दूसरा वो उस हिमायत को 2 ख़वातीन फ़ोन पे डिस्कस नहीं कर सकती। वो चीफ जस्टिस को ताकत दे रही है, लोगों की दुआ उनके साथ है, ये बात नहीं कर सकती। और क्या जिस तरह से ये चोर भाग रहे हैं इंतखाबात से, इससे लोग चीफ जस्टिस के लिए दुआ नहीं कर रहे। जिस तरह से हमारे यहाँ सहाफ़ी खुद बताते रहे हैं पिछले कुछ अरसे में कि आप देखिए चीफ जस्टिस को फारिग किया जाएगा। लंदन से अजहर जावेद साहब, चूंकि वो मियाँ साहब के करीब उनके पास मुलाकात करते हैं बार बार जाके, वो कहते हैं फैसला हो गया, ऑडियो वीडियोज़ आएंगी और ये हो गया, और चीफ जस्टिस को हम ख्याल जजेस जो हैं वो घर भेजेंगे। ये तमाम बातें हो रही थी, हमारे यहाँ बहुत से सहाफ़ी ये बातें कर रहे थे। तो ये जो गुफ्तगू है ये 2 ख़वातीन की गुफ्तगू है, इसमें अनलॉफुल क्या है, अनएथिकल क्या है, इसको रिकॉर्ड करना अनएथिकल है। हुकूमत ये काम कर रही है, हुकूमत ये काम करवा रही है, इसको इस तरह से लेकर आना अनएथिकल है। हुकूमत ये कर रही है, हुकूमत ये करवा रही है। और फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं इस पूरी गुफ्तगू पर कि हमने जब हमारी कॉल्स रिकॉर्ड हो रही थी, लीक हो रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट से बार बार दरख्वास्त की कि देखें ये सिलसिला तबाहकुन है। अगर मुल्क के वजीर आजम का दफ्तर इतना गैर महफूज है कि वहाँ हर मीटिंग की रिकॉर्डिंग हो रही, तो बाकी कौन महफूज होगा। एजेंसियों का ये किरदार किस महज़ब मुल्क में है। ये दरख्वास्त महीनों गुजरने पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगी। अब कोई जज, सियासतदान, सरकारी मुलाजिम, हत्ता कि घरेलू ख़वातीन भी इस 3rd क्लास सोच का शिकार हैं और कोई कुछ कर नहीं सकता। फेयर ट्रायल लॉ के तहत ऐसी गैर कानूनी फ़ोन टेपिंग की सज़ा 3 साल कैद हो सकती है, फवाद चौधरी साहब ने बताया। ये इस वक्त की हालत है। प्रॉब्लम क्या है इस हुकूमत को, ये हुकूमत अपने मुखालिफिन की कॉल्स रिकॉर्ड करते करते यहां तक आ गई है कि आम खवातीन की, ये घरेलू खवातीन की कॉल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें कुछ भी अनएथिकल नहीं है, कुछ भी अनलॉफुल नहीं है। क्या चीफ जस्टिस को लोग दुआएं नहीं दे रहे? क्या ये लोग जिस तरह से चीफ जस्टिस को धमकियां दे रहे हैं, कोई करवा ही नहीं सकता इलेक्शन? ये चीफ जस्टिस को, अदालत को धमकियां दी जा रही हैं, आपका वजीर दिफा कहता है नहीं देते पैसे, जाओ। ये गुफ्तगू हो रही है। ये मरियम साहिबा एजाजुल हसन साहब के बारे में जलसों में खड़ी होकर जो गुफ्तगू कर रही हैं, 5 जजों की तस्वीरें दिखा रही हैं, ये जो काम हो रहा है, ये काम करते हो आप सोचते हैं कि चीफ जस्टिस को लोग दुआएं नहीं देंगे?
माफिया से टक्कर ली है चीफ जस्टिस ने, और उसका ये नतीजा है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि इस वक्त उमरता बंदयाल साहब के लिए दुआएं हैं। दूसरा, मैं इस वीडियो में आपसे जो बात करने जा रहा हूं, देखिए कुछ सहाफियों को मैंने पहले भी आपको बताया था, एक जगह बुलाया गया, बुलाकर कहा गया नो इलेक्शन, एक बात। दूसरा, इमरान खान इज नॉट गोइंग टू कम इन टू पावर कम वॉट में, ये मैं कोट एंड कोट आपको वर्ड्स बता रहा हूं, और ये हुकूमत करवा रही है, हुकूमत मुसलसल करवा रही है। तो वहां सहाफियों को ये बताया गया। अब सहाफियों को एक अदद और ब्रीफिंग दी गई है, उसमें 3 वर्ड्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये 3 वर्ड्स जो हैं ये आपको गुज़श्ता कुछ अरसे में इन सहाफियों की टेलीविजन गुफ्तगू में, और ये सारे वो सहाफ़ी हैं जो स्पेशली टेलीविज़न पे आते हैं, प्रोग्राम होस्ट करते हैं और या फिर आकर अपनी राय देते हैं, उन सहाफ़ियों को 3 लफ्ज़ दिए गए हैं। और ये आपको मुसलसल, आप सोशल मीडिया वीडियोस देखें, आपको ये 3 लफ्ज़ मिलेंगे। एक, कल्ट, दूसरा लफ्ज़ है पॉपुलिस्ट, और तीसरा है डिसरप्टिव। कल्ट, पॉपुलिस्ट, डिसरप्टिव। इमरान खान कल्ट का लीडर है। इमरान खान जो है उसके पीछे ये जो लोग हैं, ये कोई नजरियाती लीडर के पीछे नहीं है, फैन क्लब है, ये जी इस तरह का है, जुनूनी, ये बातें हो रही थी। अब पॉपुलिस्ट कैन नॉट चेंज। इमरान खान तो ऐसे ही जी बदलेगा नहीं जी, ये गलत है, ये खराब है। और उसके बाद डिसरप्टिव, ये सिस्टम खराब करेगा, तबाह करेगा, ये सब कुछ खत्म कर देगा। ये तमाम बातें आपको नून लीग के लोगों की सोच में भी नजर आ रही हैं, इमरान खान के मुखालिफिन की सोच में भी नजर आएंगी, और ये बातें अब आपको सहाफियों की सोच में नजर आ रही हैं टेलीविजन प्रोग्राम में। कल्ट, पॉपुलिस्ट, डिसरप्टिव, ये बाकायदा हिदायत के तहत काम हो रहा है। जिस तरह कुछ सहाफियों ने, मैंने एक ट्वीट भी किया था, सना बुच्चा साहिबा ने टेलीविजन पे कह दिया इमरान खान नहीं आ सकता, ये हुकूमत ने ब्रीफिंग दिलवाई थी। सुहेल वड़ाई साहब क्या जुमले कहते हैं? सुहेल वड़ाई साहब जुमला कहते हैं, इमरान खान की मकबूलियत है, कबूलियत नहीं है। कम वोट में इमरान खान इज नॉट गोइंग टू कम इन टू पावर, ये वहां से आया है। तो ये बाकायदा उसी तरीके से किया गया काम है। इसके बाद मैं आपसे मजीद अर्ज करूं कि हामिद मीर साहब, जिनकी नसीम ज़हरा साहिबा के साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू वायरल हो रही है कि बाजवा ने ये किया, बाजवा ये करने जा रहा था, नून लीग को एक बयानिया चाहिए ना। इस मौके पर वो गुफ्तगू कि बाजवा जो था वो क्या कर रहा था, बाजवा को भी एक तमाम चीज़ों के साथ इस वक्त निशाना यहाँ पर जो लोग बना रहे हैं वो पहले एक बात का जवाब दें। हामिद मीर साहब ही थे, और ट्वीट की तारीख थी 5 फरवरी 2022 और 2:30 दोपहर को हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया, इमरान खान के दौर में कश्मीरियों के साथ जो बेवफाई हुई उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। जिस मोदी ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर गजब कर लिया, उसके साथ 2021 में सीज फायर एग्रीमेंट कर लिया गया। हामिद मीर साहब को इससे पहले ये ब्रीफिंग दी गई थी, और हामिद मीर साहब किसको इल्ज़ाम दे रहे थे? हामिद मीर साहब 5 फरवरी 2022 को इल्ज़ाम दे रहे थे इमरान खान को। ब्रीफिंग पहले दे दी गई थी नसीम ज़हरा साहिबा को, इमरान खान साहब को भी, हामिद मीर साहब को भी, और 25 सहाफ़ियों को। तो ये बातें हामिद मीर साहब तब कर रहे थे, तब क्यों नहीं बोलते? चलें, मैं कहता हूं ना बोलते। बाजवा साहब थे ताकत में, हामिद मीर साहब नहीं बोल सकते थे, ना बोलते, चुप रहते। इमरान खान पे इल्ज़ाम लगा रहे थे तब। हामिद मीर साहब मजीद क्या कर रहे थे? एक और ट्वीट किया इन्होंने, ये ट्वीट है 14 फरवरी का, वैलेंटाइन डे का, हामिद मीर साहब का, 12:23 रात का। कहते 2 क्वेश्चंस, इफ पुलवामा इज इन इंडिया देन व्हाई कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। ये एक ट्वीट पर, असद तूर के ट्वीट पर बात हो रही थी। उसने कहा कि इमरान खान ने एक इंटरव्यू में फरीद ज़करिया को कहा कि इन इंडिया, तो वो कहने लगे कि कश्मीर इंडिया नहीं है। असद तूर ये बात कर रहे थे, इंडिया के कंट्रोल में इमरान खान साहब इस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे थे। आगे हामिद मीर साहब के, इफ मोदी इज प्रोमोटिंग रेसिस्ट आइडियोलॉजी देन व्हाई अ सीज फायर एग्रीमेंट विद इंडिया लास्ट ईयर। और ये इमरान खान साहब से सवाल करते हैं, हमें अब बता रहे हैं आप कि जो कर रहा था बाजवा कर रहा था, आपको ये बात बहुत पहले से पता थी, ब्रीफिंग में बता दी गई थी, बाजवा मोदी को ला रहा था, तब आप सवाल कर रहे थे इमरान खान से, नहीं थी हिम्मत तब सच बोलने की, ना बोलते। इमरान खान के खिलाफ बोल रहे थे तब आप, अब आप बाजवा के खिलाफ बोल रहे हैं। ये कौन सी सहाफत है जो आप सीनियर्स, हम जूनियर्स को, और हमसे पीछे मौजूद जूनियर्स को जो अब आएंगे आगे, उनको सिखा रहे हैं? आप तब बिल्कुल भी सच नहीं बोल रहे थे, या आप अब आके बताएं कि तब जो आप बातें कर रहे थे उसके पीछे भी बाजवा था। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।